Good morning everyone. Today we are going to solve exercise 7.3 from question number 7 to 11. So our question number 7 is we have to solve 5pr which is equal to 6pr minus 1. Okay, as we know 5pr is equal to NPR. First we take NPR is equal to factorial n upon n minus r factorial. So this we are going to solve 5pr, we can write it as factorial 5 upon 5 minus r factorial, okay, which is equal to, here we have 2 and then factorial 6 upon 6 minus r minus 1 factorial. Okay, now this is going to be plus. Why? Because r minus 1 is separate and here we have separate minus. Okay, next is factorial 5 we have, and then 5 minus r factorial which is equal to 2. Here we have 6 factorial upon, this is going to be 7 minus r factorial. When we further solve, we will have 5 factorial, this is your factorial, okay, 5 minus r factorial which is equal to 2, 6 factorial upon, here we have 7 minus r factorial, we can write it as 7 minus r, 6 minus r and then 5 minus r factorial. Okay, we can cancel out 5 minus r factorial to 5 minus r factorial. Then here we have 5 factorial which is equal to 2 multiplied by 6 factorial upon 7 minus r and 6 minus r. We can move this value to here. Then we will have 5 factorial, 7 minus r, 6 minus r which is equal to 2 into 6 factorial. Here we are having, while we open it, we will have 6 multiplied by 5 factorial, and again we can cancel out 5 factorial to 5 factorial. Okay, after solving this equation, we will have 42 minus 7r minus 6r and then r square which is equal to 6 2 12. Okay, then while arranging this, we will get r square minus 13r, and here we have 42 and here we are having 12. So while subtracting 42 minus 12, we will have 30, right? So we can write it as r square minus 13r plus 30 equals to 0. So this is the algebraic equation we are having. So we can solve it as r square minus 13r, we can write 3r minus 10r. ठीक है, 13r को हम 3r minus 10r लिख सकते हैं, and then we will have plus 30 equals to 0. While taking common from this equation, I am going to solve it here. I am taking r as a common, r minus 3 is remaining, and here I am taking 10 as common. Okay, then again I am having r minus 3 which is equal to 0. Now we have the values r minus 10 and r minus 3 which is equal to 0. We have to find the value of r, so we have r equals to 10 and 3. So this is our solution. Okay, so we can further solve it as, we have to see whether the r की वैल्यू हमारे पास 10 है या 3 है, हमें ये चेक करना है. ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है NPR इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, राइट. बट वेयर r की वैल्यू कहाँ पे होगी, r बिलोंग्स टू 0, लेस देन इक्वल टू r एंड देन इन बिटवीन n और 0 के बीच में r की वैल्यू होती है. तो n हमारा क्या था यहाँ पे 5 और 6, ठीक है. तो 5 और 6 से ज़्यादा बड़ी हम n की वैल्यू नहीं ले सकते. दैट्स वाई वी आर हैविंग r इक्वल्स टू 3 नॉट 10. दिस इज आवर सोल्यूशन. नेक्स्ट इज 7 का ही सेकेंड पार्ट वी आर हैविंग. यहाँ पे भी हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो वी हैव
इस वैल्यू को जब हम ओपन करेंगे देन हमारे पास आएगा फैक्टोरियल 5/5 माइनस आर फैक्टोरियल, राइट. इस वैल्यू को जब हम ओपन करेंगे वी विल हैव 6 फैक्टोरियल 6 minus r plus 1 factorial. Okay, then we have 5 factorial upon 5 minus r factorial. Similar way here we have 6 multiplied by 5 factorial. 6 factorial को हम क्या लिख सकते हैं, 6 multiplied by 5 factorial. Okay, this again becomes 7 minus r factorial and we can cancel out 5 factorial to 5 factorial. Again here we have 1 upon 5 minus r factorial which is equal to 6 by, here we have 7 minus r, then 6 minus r and then 5 minus r factorial. We can cancel out 5 minus r to 5 minus r and we can take this value to here. We will have 7 minus r, 6 minus r which is equal to 6. When we open this value we will have 42 minus 7r minus 6r plus r square. Okay, and here we are having 6. Then after this we are having r square. We can write it as, or we can arrange it as r square minus 13r and here we are having 42. While subtracting 6 to 42 we will have plus 36 which is equal to 0. Okay, and what we have to do, we have to find the factor of this equation. Then we can write r square minus 4r minus 9r plus 36 equals to 0. Now we have to take the common value. Here we have r minus 4 and here we have 9 r minus 4 which is equal to 0. And here we have r minus 9 and r minus 4 which is equal to 0. Now we have the value of r is 9 and 4. But as I already told you, we have NPR equals to factorial n upon factorial n minus r. Okay, so r की value should not be equal to n. ओके, 0 से n से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती r की एंड हियर वी हैव n की वैल्यू 5 and 6. ठीक है, तो हम 9 वैल्यू नहीं ले सकते. वी कैन टेक r इक्वल्स टू 4. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन using each letter exactly once. We have our question number 8 that how many words, कितने words हम बना सकते हैं with or without meaning can be formed using all the letters. हमें सारे letters लेने हैं इस word के equation के, तो हमें and we have to use each letter exactly once. हर एक letter को हम एक बार ही use कर सकते हैं. So first we have to find the common value. First तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास word क्या है, equation, right? क्या कोई चीज़ रिपीट हो रही है? नो, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 8. सो आर n इक्वल्स टू 8. एंड इक्वेशन को लिखने के लिए विद और विदाउट मीनिंग हम क्या बना लेते हैं, बॉक्सेस बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो यहाँ पे कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है और हर एक लेटर को हम एक बार ही यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है. ठीक है, सो वी हैव r इक्वल्स टू 8 क्योंकि हम क्या लेते हैं r की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस. ठीक है, जितने बॉक्सेस हम बनाते हैं या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी हमें फिल करनी होती है. तो r इक्वल्स टू क्या हो गया 8. तो फ्रॉम दिस वी हैव NPR इक्वल्स टू 8P8. ओके, तो हमारे पास NPR क्या है, 8P8 है. जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल हैव फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल. ओके, हियर वी हैव 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल एंड यू नो दैट 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1 एंड 1 फैक्टोरियल का भी वैल्यू होता है 1. सो वी कैन राइट इट एज 8 फैक्टोरियल ओनली. एंड जब हम 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं दैट इज 8 बाई 7 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 40320. दिस इज आवर आंसर.
Okay, our next question is how many words with or without meaning can be made from the letter of the word Monday. ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है, कितने वर्ड्स हम विद और विदाउट मीनिंग बना सकते हैं बाय यूजिंग द लेटर of the words Monday, assuming that no letter is repeated. इसके अंदर हमें कंडीशंस गिवन है 3. 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, एक टाइम पे हम 4 लेटर्स को ही यूज़ कर सकते हैं. एंड देन ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, एक टाइम पे सारे लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं. एंड द थर्ड कंडीशन इज ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल. ओके, सो इसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट तो हमारे पास है मंडे, ठीक है, MONDAY. कोई लेटर रिपीट हो रहा है? नो. तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हम कितने बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 एंड 6. कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है हमें, ठीक है, और एक बार में 4 लेटर ही यूज़ करना है हमें एक टाइम पे. तो मंडे से जब हम 4 लेटर ही यूज़ करेंगे एक टाइम पे, तो हम इन दोनों बॉक्सेस का यूज़ नहीं करेंगे. दिस इज़ आवर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है. तो कोई से भी 4 लेटर्स हो सकते हैं. दैट मीन्स के टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स तो है हमारे पास 6 और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास हैं 4. तो हमारी कंडीशन है NPR इक्वल्स टू 6P4, ठीक है. 6P4 को जब हमने सॉल्व किया, वी विल हैव फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. जब इसे सॉल्व करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल. नीचे भी 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट 360. ओके, सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 9 का फर्स्ट. सेकेंड, वी आर हैविंग ऑल लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम. सारे लेटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं. मंडे हमारे पास वर्ड है और सारे लेटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं. दैट मीन्स कि हम बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे टोटल 6, ठीक है. तो हमारे पास यहाँ एन भी क्या है? 6 है एंड आर भी क्या है यहाँ पे हमारे पास? 6. तो हमारा परम्यूटेशन क्या हो जाएगा? NPR विच इज़ इक्वल टू 6P6. इसे ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल 6 माइनस 6 फैक्टोरियल. सो we will have factorial 6 and 0 factorial, and as you know 0 factorial equals to होता है 1. तो हम 6 factorial को ही ओपन कर लेते हैं. 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन 1. और जब इसे सॉल्व करेंगे we will have 720. ओके, थर्ड क्वेश्चन we are having all letter are used but first letter is a vowel, ठीक है. तो वॉवल हम देख लेते हैं. मंडे में हमारे पास क्या होते हैं? वैसे वॉवल आपको मालूम है क्या होता है? AEIO एंड U, ठीक है. मंडे जो हमें वर्ड गिवन है इसमें वॉवल्स कितने हैं? ये और ये. ओके, तो टोटल वर्ड्स तो हमारे पास हैं, बॉक्सेस हम ड्रॉ कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है. बट यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है कि फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? वॉवल होना चाहिए. तो या तो वो O हो सकता है या A हो सकता है. बाकी के तो सब हम ऐसे ही फिल करेंगे, ठीक है. तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पर हमारे पास कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास, अगर हम यहाँ पे O या A फिल कर देते हैं, अगर O फिल कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बचे हमारे पास? 5, ठीक है. A फिल कर देते हैं तो भी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास कितने बचे? 5, ठीक है. इसके अलावा वेज तरीके आर हमें निकालना पड़ेगा कि कितना हम आर फिल करते हैं. तो फर्स्ट तो हम देखते हैं कि टोटल, इसे हम सेपरेट कर लिया, राइट. ये हमारे पास सेपरेट है. तो यहाँ पे इसके लिए परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे 2 वर्ड्स हम भर रहे हैं, दैट मीन्स 2. तो हमारे पास n आ जाएगा. एन बॉक्सेस कितने हैं? 1, ठीक है. सिमिलर वे में यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं 5 और वेज यानी कि एक एक बॉक्स ये है सबके लिए, तो 5P1, ठीक है. तो जब हम इसे ओपन करेंगे देन वी विल हैव, इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेते हैं. फैक्टोरियल 2 2 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 1
factorial. Okay, then we can solve. सॉरी, यहाँ पे भी 5 है हमारे पास टोटल, तो यहाँ पे बॉक्सेस कितने हैं 5, यहाँ पे r हमारे पास 5 ही है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5. ओके, जब हम इसे ओपन करेंगे वी विल हैव 2 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5 फैक्टोरियल. ओके, सो आवर सोल्यूशन विल बी 5, 4, 3, 2 एंड 1. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट 240. Okay, this is our solution. Our next question is question number 10. Okay, question number 10 है हमारे पास that in how many ways, in how many of the distinct, question लिख देती हूँ मैं, distinct permutation of the letter in Mississippi. We have word Mississippi. Okay, do the 4 I's not come together? क्वेश्चन है हमारे पास इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर. देखिए, हमें परम्यूटेशन यानी कि हमें अरेंजमेंट बनाना है, परम्यूटेशन फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट तो मिसिसिपी वर्ड के लिए, और साथ में हमारे पास कंडीशन है डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर, जो इसके अंदर 4 आई है 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे एक साथ नहीं आने चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए तो फर्स्ट हम निकालेंगे कि अगर इस क्वेश्चन को ना करके हम यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग के लिए, तो हमारे पास वर्ड है मिसिसिपी. ठीक है, मिसिसिपी हमारे पास वर्ड है. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 वर्ड्स हैं हमारे पास. सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ठीक है, हमारे पास टोटल P है यहाँ पे मिसिसिपी. ठीक है, तो 11 वर्ड्स हैं. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं हमारे पास 11. 11 विच इज आर N. ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं रिपीटेशन कौन कौन से वर्ड्स का हो रहा है. पहले तो हम R देख लेते हैं. R कितना होगा, इस वर्ड को बनाने के लिए टोटल कितने बॉक्सेस हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, 11 ही ड्रॉ करने पड़ेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11. ठीक है, तो इस कंडीशन जो फर्स्ट हम यहाँ तक का क्वेश्चन देख रहे हैं उसके लिए हमारे पास R कितना है 11. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं. अभी तक तो जो हमने देखे थे क्वेश्चंस उनके अंदर कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा था. ठीक है, यहाँ पे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो पहले ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं. M रिपीट हो रहा है, नो, M आ रहा है एक बार. I हमारे पास है 4 टाइम्स. ठीक है, S हमारे पास है 4 टाइम्स एंड P हमारे पास है 2 टाइम्स. तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए परम्यूटेशन फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, या फिर हम बोलते हैं कि अरेंजमेंट हम कैसे देखेंगे. यहाँ पे 11P11 फर्स्ट तो हमारे पास आ गया, हमारे पास N11 था, R भी 11 था. ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, I हमारे पास 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, फैक्टोरियल 4. S हमारे पास भी 4 टाइम रिपीट हो रहा है एंड P 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो इस तरीके से आया. ऊपर तो हम क्या देख रहे हैं NPR. ठीक है, और नीचे हम क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से वर्ड्स कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, उनका फैक्टोरियल हमने लिखा है. तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं वी विल हैव 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 11 फैक्टोरियल, और नीचे है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. ठीक है, ये तो आपके पास 0 हो गया, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1. तो ये हमारे पास है 11 फैक्टोरियल. 11 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 एंड 4 फैक्टोरियल मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ. इसके बाद हमारे पास नीचे है 4 फैक्टोरियल और
4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4, 3, 2 एंड 1 एंड 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल मैंने कैंसिल कर दिया, 4 से ये कैंसिल करा 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल करा 3 टाइम्स, ठीक है, 2 से ये कैंसिल करा 3 टाइम्स। तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या बची, 11, 10, 3, 7, 3 एंड 5 और नीचे वाली सारी वैल्यूज़ तो कैंसिल आउट हो गई हैं। तो हमारे पास टोटल इनका जब हमने सॉल्यूशन निकाला देन वी विल गेट 34650, ठीक है। बट अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमारे पास है डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर, इस कंडीशन को भी तो देखना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं जब हमारे पास आई एक साथ आएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर, नहीं आने चाहिए साथ में, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। बट अब हम कंडीशन देख लेते हैं जब आईज साथ में आएंगे, तो हम लिख लेते हैं इसे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या फिर परम्यूटेशंस where eyes come together. Then in this condition अगर हम ड्रॉ करते हैं, कितने बॉक्स ड्रॉ करने पड़ेंगे हमें, वही 11, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 बॉक्सेस हमें ड्रॉ करने हैं। बट हमारे पास कंडीशन है कि पहले हम ले रहे हैं कि आई सारे साथ में आए। तो अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे इन 4 बॉक्सेस में मैंने आई ही फिल कर दिया है, ठीक है, तो बाकी के बॉक्सेस में मैं बाकी की वैल्यूज फिल कर सकती हूँ। तो टोटल बॉक्सेस मेरे पास कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो है, बट साथ में इसको हम कंसिडर करेंगे 1 बॉक्स, तो टोटल बॉक्सेस मेरे पास हुए 8, ठीक है। अब ये तो था n, अगर हम r लेते हैं, ये टोटल था हमारा r, अब n क्या होगा, ये तो हमारा हो गया r, अब n हमें फाइंड आउट करना है। तो n हमारे पास क्या है, जितनी वैल्यू हमें फिल करनी है, वैल्यू हम फिल कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। मिसिसिपी जो वर्ड है हमारा, अगर इसमें आई हम एक साथ ले लेते हैं, एस हम एक साथ ले लेते हैं, पी एक साथ ले लेते हैं और आई तो हमारे साथ गया ही सही, ठीक है। तो इसे हम एक वर्ड कंसिडर करेंगे, ठीक है, और इससे हम अलग अलग वर्ड कंसिडर करेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने वर्ड्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 वर्ड्स भी हमारे पास कितने हो गए, 8। अब वही चीज़ देख लेते हैं कि आई को हमने एक साथ ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग वर्ड्स का रिपीटेशन कितना हुआ, एक तो एस बचा, एक पी बचा और एक एम बचा। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे बनेंगे, अरेंजमेंट्स बनेंगे इसमें 8p8, ठीक है। नीचे जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, एक तो हमारा एस रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 4 और पी रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2, एम तो 1 ही है, इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 8 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 8 माइनस 8, 0 फैक्टोरियल हो जाएगा तो हम उसे 1 लिख सकते हैं, और ये हो गया 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। जब इसे सॉल्व करेंगे, ओके, देन वी विल हैव 8, 7, 6, 5 एंड 4 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे है 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, ठीक है, 2, 3 जा 6, और जब हमने इसे सॉल्व किया देन वी विल हैव, इसे सॉल्व करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, देन वी विल हैव टोटल 840, ठीक है। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 840, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करा, सॉरी, यहाँ पे हमने करा था टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, जब हमने कुछ भी किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं किया था। टोटल तो हमने अरेंजमेंट देखा था, नीचे हमने अरेंजमेंट देखा जब हमने आईज को साथ में ले लिया, ठीक है। तो जब हमने इसमें से इस चीज़ को माइनस करेंगे, ठीक है, जब टोटल नंबर ऑफ लेटर्स में से टोटल नंबर ऑफ आईज टुगेदर को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो वाली कंडीशन जिसमें आई साथ में नहीं आ रहा है। सो इन दिस सिचुएशन हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि
ऐसी कंडीशन जिसके अंदर 4 आइज नॉट कम टुगेदर. ओके, परम्यूटेशन और अरेंजमेंट, सॉरी, और अरेंजमेंट where 4 eyes not come together. तो फर्स्ट वाली कंडीशन में हमारे पास वैल्यू आई थी 34650. ओके, 34650. सेकेंड वाली कंडीशन के अंदर हमारे पास वैल्यू आई है 840. तो जब इस कंडीशन में से इसको माइनस करेंगे तो वो वाली कंडीशन आ जाएगी जिसमें 4 आइज साथ में नहीं आ रहे हैं. देन आवर सोल्यूशन विल बी 33810. ओके, दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, in how many ways can the letter of the word permutation be arranged if the words start with P and end with S? Vowels are all together and there are always 4 letters between P and S. तो हमें क्या दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है permutation. ठीक है, permutation वर्ड हमें दिया हुआ है. अब हमें कंडीशंस दी हुई है. फर्स्ट कंडीशन है वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S. तो पहले बॉक्सेस बना लेते हैं. कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. कितने वर्ड्स हैं? PERMUTATION. परम्यूटेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वी आर हैविंग 12. ठीक है, परम्यूटेशंस हमारा वर्ड है तो हमने एस तो यहाँ लिखा ही नहीं है. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वी आर हैविंग 12. तो हमने टोटल बॉक्सेस बनाने हैं 12. 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. अब हमें फर्स्ट कंडीशन दी गई है कि वर्ड स्टार्ट विद P और एंड विद S. वर्ड हमारा स्टार्ट हो रहा है P से और एंड हो रहा है हमारा S से. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग वर्ड्स कैसे बचेंगे, कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग वर्ड्स बॉक्सेस हमारे पास हो गए तो 10. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास हो गए 10. टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास कितने बचे? वो भी 10. और इसमें अब रिपीटेशन NPR वाला फॉर्मूला होगा, उसे कैसे लिखा जाएगा? 10P10. बट क्या यहाँ पे कोई वर्ड रिपीट हो रहा है? हमने वो भी देखना है. तो यहाँ पे T रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 2. व्हेन वी सॉल्व इट वी विल हैव फैक्टोरियल 10. यहाँ तो ये 0 आ जाएगा, 10 माइनस 10 फैक्टोरियल. ठीक है, और ये आ गया 2 फैक्टोरियल. इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वी विल हैव. जब इसे सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, देन 10 9 8 7 6 5 4 3 एंड 2 फैक्टोरियल. नीचे भी हमारे पास 2 फैक्टोरियल है, 2 से 2 कैंसिल एंड आवर आंसर विल बी 1814400. ओके, नाउ ये तो हमारा फर्स्ट था. सेकंड क्वेश्चन 11 का, वॉवल्स आर ऑल टुगेदर. जब हमारे सारे वॉवल्स साथ में आ रहे हों तो वॉवल्स देख लेते हैं कितने हैं. E U A I O. ठीक है, वॉवल्स आपको पता है क्या क्या होते हैं? A E I O एंड U. ठीक है, ये हमारे वॉवल्स होते हैं. तो ये सारे इसके अंदर आ रहे हैं. अब देख लेते हैं वॉवल्स जब हमारे साथ में आएंगे तो क्या होगा. टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बनेंगे? वही 12. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. बट अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि वोवल सारे हमने स्टार्टिंग में ही ले लिए. ये A E I O एंड U. ठीक है, तो इसको तो हमने सेपरेट कर लिया. अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने बचे जब हमने A E I O U को हटा दिया? तो 1 2 3 4 5 6 7. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बचे 7. ठीक है, बट
एक हम कंसिडर कर लेते हैं वॉवल को, तो टोटल नंबर ऑफ n हमारे पास कितना आ गया 8। यहीं पे हमें r भी फाइंड आउट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरा ले लिया 8 1, तो ये हमारे पास भी क्या आ गया 8 आ गया। n भी 8 है, r भी 8 है। अगेन हमारे पास कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, यस t 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम लिखेंगे NPR इक्वल्स टू 8P8 अपॉन फैक्टोरियल 2। जो वर्ड्स रिपीट होते हैं उन्हें हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, जितनी बार कोई वर्ड रिपीट हो रहा है उसे हम नीचे लिख देते हैं। ये हो गया फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2। 8 माइनस 8 0 हो जाएगा एंड 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। अगेन सॉल्व करेंगे 8 7 6 5 4 3 एंड 2 फैक्टोरियल, नीचे भी है हमारे पास 2 फैक्टोरियल, कैंसल आउट हो गया एंड आवर सॉल्यूशन इज, वेट यहाँ पे क्या है हमारे पास कंडीशन, यहाँ पे 5 बॉक्सेस भी तो हैं, हमने इन्हें तो कंसिडर किया ही नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये चीज़ भी तो हमें लेनी है, तो इसे भी तो कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पे 8 8P8 अपॉन 2 फैक्टोरियल के साथ में इस वाली कंडीशन को भी हमें देखना है। 5 बॉक्सेस हैं एंड 5 ही हमारे पास टोटल वर्ड्स हैं, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं 8 7 यही चीज़ ले लेते हैं इसके लिए, तो 6 5 4 एंड 3, तो हम 5P5 जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 5 ओनली, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 को भी हम जब ओपन करेंगे देन आवर सॉल्यूशन विल बी 2419,200, ठीक है। ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा। अब नाउ वी आर हैविंग थर्ड कंडीशन दैट देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन हम थर्ड क्वेश्चन के लिए भी 12 बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है कि P और S के बीच में 1 2 3 4 लेटर्स आने चाहिए, ठीक है। तो जब P और S के बीच में 4 लेटर्स आने चाहिए, बट हमें ये थोड़ी बोला है कि P और S कहाँ आना चाहिए। अगर P यहाँ आता है तो S यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, P यहाँ आता है तो S यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, P यहाँ आता है तो S यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कहीं पे भी ले सकते हैं P और S को, बट हमें क्या करना है P और S को फिक्स करना है और उनके बीच में 4 लेटर्स आएंगे ही आएंगे। तो अब हम देख लेते हैं P और S को फिक्स करने के बाद टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग बॉक्सेस कितने बचे हमारे पास। जब हम कंडीशन देखते हैं फर्स्ट में P हमने लिया है, पहले हम P ले लेते हैं। अब एक कंडीशन और है कि हम पहले S भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ये नहीं गिवन है कि S पहले आएगा कि P पहले आएगा। तो हम कंडीशन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस तो हमारे पास 10 हो गए। R हमारे पास कितना हो गया, R हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। R भी हमारे पास हो गया 10। रिपीटेड वर्ड्स तो हमारे पास है ही सही, T हमारे पास रिपीट हो रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स। और यहाँ पे अब जब हम P स्टार्टिंग में फिक्स कर देते हैं, S एंड में फिक्स कर देते हैं, 4 लेटर्स उसके बीच में फिक्स कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग वर्ड्स कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा एक 7, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने P स्टार्टिंग में फिक्स कर दिया एंड S बाद में फिक्स किया है, तो हमारे पास परम्यूटेशन क्या बना 10P10 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि ये सारा अलग हो गया 7 1 एक हो गया, ये 6 बॉक्सेस हो गए, तो हमारे पास 7 हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं जब हम S फर्स्ट में फिक्स कर देते हैं एंड S बाद में फिक्स करते हैं, तो हमारे पास अगर हमने S पहले फिक्स कर दिया
इसको कंसिडर ना करेंगे, वापस से बॉक्स बना लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. 9 10 11 एंड 12. ठीक है, एस पहले फिक्स कर दिया, पी बाद में किया. ठीक है, यहाँ पे 4 बॉक्सेस इसके बीच में रहने ही है, तो यहाँ पे टोटल हमारा एन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 7 8 9 और ये सारे दोनों मिला के क्या है 10. आर भी हमारे पास 10, फैक्टोरियल 2 नीचे आएगा इसे क्योंकि टी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. ठीक है, अब चाहे एस पहले आए या पी बाद में आए, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास कितने होंगे, 7 ही तो होंगे. 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा 7. ठीक है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 10p10 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 7. इक्वेशन 2. अब हमें क्या करना है, चाहे p पहले आए चाहे s पहले आए, हमें इन दोनों को अब ऐड कर देना है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे. तो बाय एडिंग 1 and 2 we will have 10p10 upon factorial 2 multiply by 7 plus 10p10 upon factorial 2 multiply by 7. ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉमन ले लेते हैं. 10p10 यहाँ सॉल्व कर लेते हैं. 10p10 अपॉन फैक्टोरियल 2, 7 प्लस 7 हमारे पास रिमेनिंग रह गया. ये हो गया फैक्टोरियल 10, ये हो गया फैक्टोरियल 2, क्योंकि 10 माइनस 10 फैक्टोरियल आएगा वो होगा 0 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 1. ये हो गया 14. तो व्हेन वी सॉल्व इट वी विल हैव आंसर एज 25401600. That's it.